Okay, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that please wear the mask and follow all the SOPs as per the government. Follow social distancing, use the sanitizer, and if it is not possible, don't go outside. Okay, if it is not required, because the third wave might become. Okay. Now the second appeal is that now after 4 to 5 months, there is a chance that your school will be open. So your school will be open on 16th of August. Okay, your school will be open from 16th of August, and you should come to school on the regular time. Okay, that means you have to come to school for studies, and if we will give you all the details after that, but you have to keep this thing on your mind that your school will be open from 16th of August as per the government rule. You have already read the newspaper. You have read the newspaper, so you have already aware about this news that your school will be open from 16th of August. Now, moving on. Yesterday we have discussed about operating system and kernel. So do you have any problem in this? I have told you that kernel is a chief part which is reside in the operating system and which manages all the activities in the computer. Okay, file management, device management, input output management, everything is done by the kernel. Okay. Now we have to discuss the few more things in operating system. Lecture number 2, actually I have not prepared the notes today, so I will give the notes tomorrow only. So we have to discuss the various types of operating system. Okay, in page number 93, 92 and 93, there are various types of operating systems. Okay, there are various types of operating system which we need to discuss. Types of operating system. Okay, there are various types of operating systems are there बच्चों. बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनमें सबसे पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, ये बताइए बैच से आप लोग क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैच? बताइए, बैच से आप लोग क्या समझते हैं? बैच जैसे आप लोग भी तो बैच हो. आप सब बच्चे मिलकर के एक बैच बनाते हैं ना, कंप्यूटर का बैच या 9th क्लास का बैच. बैच है ना आप लोग. कलेक्टिवली यू ऑल आर बैच. ओके, बहुत सारे लोग. बैच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, वो देखिए जब ग्रुप ऑफ कमांड, जब बहुत सारी कमांड एक साथ एग्जीक्यूट कराते हैं, when we have to execute number of commands and we have to feed in the computer. Okay, so the command will be execute one by one. जो फर्स्ट कमांड है वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होगी, सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होगी, थर्ड कमांड एग्जीक्यूट होगी, फोर्थ कमांड एग्जीक्यूट होगी. तो जो बहुत सारी कमांड एक साथ हम लोग दे देते हैं कंप्यूटर को, दिस इज कॉल्ड बैच कमांड, है ना. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ कमांड एक साथ दी जाती थी, वो क्या होता था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यही लिखा हुआ है, in this system the job made into the batch and feed the computer. In this OS, jobs are made. जॉब्स का मतलब वर्क. जॉब का मतलब क्या होता है? कमांड्स. जॉब्स का मतलब क्या होता है? कमांड्स. जो भी कमांड्स हैं आर मेड as a batch and feed into the computer. बहुत सारी कमांड्स होती थी, उनको एक साथ
एग्जीक्यूट करके एक बैच बना दिया जाता था, ठीक है, और वो कमांड जो कंप्यूटर को फीड कर दी जाती थी, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सारी कमांड वन बाय वन एग्जीक्यूट करता रहता था। ओके, टू द कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पता है मैं ओएस से रिप्रेजेंट करता हूं। बंद कर दो आवाज। बेटा एक मिनट होल्ड करिएगा आप। ओके, तो क्या होता है, तो ओएस, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल लोड द appropriate compiler for each jobs। ओके, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें जो बहुत सारी कमांड होती है एक साथ जो होते हैं उसको बना करके एक साथ कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराया जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द appropriate compiler for each job। ओके, एंड इट विल ट्रैक, ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये मेरे बच्चे, जैसे मान लो कोई बहुत सारी जॉब्स हैं, मैंने एक जॉब बनाई, मैंने एक बैच बनाया, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे जॉब्स बनाए, बहुत सारे जॉब्स बना दिए। जैसे मान लीजिए एक जॉब बना दी, बैठ जाइए, मान लीजिए एक जॉब बना दी, जॉब 1 मैंने बना दी कि फाइल ओपन की, ओपन फाइल, ठीक है। इसके बाद दूसरी मैंने जॉब बना दी लोड फाइल, ठीक है। तीसरी फाइल बना दी, तीसरी जॉब बना दी मैंने क्लोज फाइल, और चौथी जॉब मैंने बना दी रिमूव फाइल। ये टोटल तरीके से 4 जॉब्स है, 4 जॉब मतलब 4 कमांड्स हैं, ये 4 कमांड्स हैं सब। ये मान लीजिए जॉब 1 है, दिस इज जॉब 1, दिस इज जॉब 2, ठीक है। जॉब 3 कौन सी है, क्लोज द फाइल। ओके, जॉब 3, ओके। और इसी तरीके से ये जॉब 4 हो गई, ठीक है, रिमूव फाइल। ये 4 जॉब है सपोज। ओके, जॉब 1 क्या, ओपन द फाइल, जॉब 2 क्या है, लोड द फाइल, जॉब 3 क्या, क्लोज द फाइल, और जॉब 4 क्या है, रिमूव द फाइल। ओके, तो ये तो चारों फाइल्स हैं, ये तो चारों फाइल्स हैं, ये एक साथ जैसे ही लोड होगी कंप्यूटर पे, है ना, तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं एक नाम देता हूँ बैच, है ना, इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, एक बैच फाइल का एक नाम दे देता हूँ। तो इस पूरी फाइल, ये कमांड है, इसका मैंने नाम दे दिया, ये एक बैच फाइल है, क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये बैच कमांड है। क्या है? बैच कमांड है। क्या है? एक बैच कमांड। बैच कमांड, ये सारी बैच कमांड है, एक साथ सारे और जितने भी ऑपरेशन होते हैं अपलोड हो जाएंगे और सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पहले जॉब 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर जॉब 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर जॉब 3 एग्जीक्यूट होगा, जॉब 4 एग्जीक्यूट होगा ना। पर ये सारी कमांड हम लोग एक साथ एक प्रोग्राम में लिख देंगे। तो इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते थे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते थे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आई बात? कोई डाउट यहां तक? ये बताइए बच्चों। नो सर। ओके, फिर पूछ रहा हूं, कोई डाउट है? नो। फिर दूसरी जॉब कौन सी है? नो सर। मल्टी यूजर दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें, a multi-programming operating system keeps as the commands keeps in a computer memory a set of job belonging to different users, schedule them on CPU, provide input output facility requested by the each user and optimize the use of the computer resources. हाँ, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये सारे जितने भी रिसोर्सेज उनको मैनेज करता है, हर कमांड का ट्रैक रखता है, कोई भी कमांड कभी भी कैसे भी एग्जीक्यूट करती है उसका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स इन अ कंप्यूटर मेमोरी सेट ऑफ जॉब बिलोंग टू डिफरेंट यूजर, शेड्यूल देयर टू ऑन अ कंप्यूटर ऑन अ सीपीयू, प्रोवाइड फैसिलिटी रिक्वेस्टेड बाय ईच यूजर एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। है ना? मतलब कहने के जैसे मान लीजिए बहुत सारे यूजर्स हैं, मल्टी यूजर्स हैं, ठीक है, वी कैन कॉल इट, वी कैन, हम लोग उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट, वी कैन कॉल इट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? वी कैन कॉल इट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मेन पर्पस क्या होता है? द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स इन कंप्यूटर मेमोरी अ सेट ऑफ जॉब बिलोंगिंग टू डिफरेंट यूजर्स, शेड्यूल देम सीपीयू। ठीक है, हर सीपीयू में सीपीयू को बताता है कौन से कितने यूजर को कितना टाइम देना। जैसे मान लो 4-5 यूजर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये सीपीयू को बताता है कि कितने यूजर को कितनी मेमोरी देनी है, कितने यूजर को कितना टाइम देना है। ये शेड्यूल करता है सीपीयू को, इनपुट आउटपुट को बताता है, इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइसेज होते हैं उनको बताता है, शेड्यूल करता है कि आपको इतनी देर के लिए इसको ये टाइम देना, इतनी देर के लिए इसको ये टाइम देना। ठीक है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सारे इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज को, और ये मैनेज कर दिया, ये लगातार मल्टी यूजर्स को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, the primary object of multi-user operating system is to maximize the maximize the number of program executed by the computer in a specific period and keep all the users of a computer simultaneously busy. है ना? It keeps the primary objective of OS is to schedule the CPU को शेड्यूल करता है एंड मैक्सिमाइज
maximize the maximize the number of programs executed. मैक्सिमाइज द प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूटेड है, जितने भी प्रोग्राम्स है मैक्सिमाइज है उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। ओके यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करा पाना, सीपीयू को इतना बिजी कर देना कि जितने मैक्सिमम कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है उनको एग्जीक्यूट करा पाना, ये मेन काम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। यानी कि उसका मेन काम ये होता है जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सके। यानी अगर आप गाना सुनना है तो गाना भी सुन सके, गेम खेल रहे हैं तो गेम भी खेल सके, चैट कर रहे हैं तो चैट भी कर सके, प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट भी कर सके। यानी एक साथ जितने काम आप कर सकते हैं, जितने प्रोग्राम आप चला सकते हैं, उसके लिए सीपीयू को अलॉट करना, उसके लिए इनपुट आउटपुट को फैसिलिटेट करना, ये एक मेन पर्पस होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। जो तीसरे टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है टाइम शेयरिंग। क्या होता है? टाइम शेयरिंग। तो तीसरे टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन सा है? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग से क्या समझते हो तुम लोग? चलिए बताओ, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? टाइम शेयरिंग ओएस का मतलब क्या होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अलाउ नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली यूज द कंप्यूटर। जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर तो उनको ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाना, ठीक है। ये होता है टाइम शेयरिंग। मतलब कहने का ये होता है कि जितना ज्यादा हो सके नंबर ऑफ यूजर जो साइमल्टेनियसली यूज द कंप्यूटर, यानी जितना हो सके यूजर जो है एक साथ कंप्यूटर यूज कर सके। द मेन पर्पस, द मेन aim of time sharing OS is to allow a number of users use the computer simultaneously का मतलब होता है एक साथ, है ना, एक समय में। एक साथ जितने लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस, है ना। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द मेन एम ऑफ दिस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलाउ नंबर ऑफ यूजर्स यूज द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। यानी कि जितने ज्यादा हो सके यूजर जो है एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सके, वो क्या होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है जितने ज्यादा से ज्यादा यूजर्स एक साथ काम कर सके। जैसे मान लो किसी कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी में बहुत सारे लोग एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका काम ये होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ काम कर सके बिना किसी रुकावट के। जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, एन नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है। उनके पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी वो एक ही नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है सबके पास। एक सर्वर है, ठीक है, जो सारे एक कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये मेन सर्वर रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक सर्वर है, यहाँ पे क्या सर्वर है, ठीक है। वो सारे के सारे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े, ये इन सब में
इन सब ये सब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें भी मान लो ये कोई कंप्यूटर 1 है, ये कोई कंप्यूटर 1 है, ठीक है। ये कोई कंप्यूटर 2 है, ये कोई कंप्यूटर 3 है, ये कोई कंप्यूटर 4 है, ठीक है। इसमें क्या है? सर्वर है। इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है? इसमें ठीक है, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉरी, ये क्या सर्वर है? ये क्या सर्वर है? देखो ये सर्वर से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए एक साथ। ये देखिए, ये सर्वर की लाइन गई हुई, सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका जो मेन एम ये होता है कि इन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं सेम होंगे, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, है ना। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे सब में सेम होंगे। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ काम कर सके, एक साथ यूज कर सके, किसी बिना कोई प्रॉब्लम के। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सके एक ही समय में, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स कैन यूज द same operating system at the same time without any interruption. So this type of operating system is called time sharing operating system. इस तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये बताइए, समझ में मेरी बात आई नहीं आई बच्चों? बताइए। आ गई। आ गई? जब एक साथ बहुत सारे लोग, रुकिए मैं इसकी इमेज पे पिक भेज देता हूं। हो गया। अब इसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सर अली हमजा को एडमिट कर लीजिए सर। अली हमजा को एडमिट कर लें? अली हमजा ने रिक्वेस्ट की। हाँ, ये आउट कैसे हो गए थे? ये लोग बार बार लीव कर देते हैं, बाद में कहेंगे कि सर आप ऐड नहीं कंप्यूटर में कर। इतना भी तक पढ़ाया तो समझ में आ रहा है? यस सर। मजा आती कंप्यूटर पढ़ने में? बताइए। तो जितनी भी अभी पढ़ी है उसका तो समझ में आया है। ठीक है, सारे नोट्स आप कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये बताइए। कंप्लीट है सर। जब कंप्लीट है, सारे नोट्स अपने कंप्लीट करते रहिए, और जो भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिएगा, ओके। सर मंडे से स्कूल खुल रहा है ना? शायद हाँ बेटा, मंडे से स्कूल खुल रहे हैं। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, मंडे से आप लोगों के स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही प्रिपेयर्ड रहना है इस चीज के लिए कि कभी भी स्कूल आना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो आप उसके लिए रेडी रहिए। मगर मेरी अपील आपसे यही रहेगी कि अगर देखिए, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको, ठीक है, तो ये आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर लीजिएगा कि व्हाट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपकी फैमिली अलाउ करती है तो आप डेफिनेटली स्कूल आइए, हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और मेरा तो सजेशन यही होगा कि अगर आप लोग मास्क लगा करके, सैनिटाइजर ले करके आप आइए, ठीक है। बाकी तो जीवन तो ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। जिसको जीवन मिलना होगा उसको जीवन मिलेगा, और जिसको जाना होगा इस धरती से वो चला जाएगा। बट माई अपील टू यू दैट यू शुड वेयर द मास्क, यूज द सैनिटाइजर एंड यू शुड कम टू स्कूल। बेटा पर आप काफी ज्यादा टाइम हो गया है, स्कूल बंद हुए मार्च में, स्कूल बंद हो गया था मेरे ख्याल से, राइट? मार्च या अप्रैल में बंद हो गया था, है ना। मार्च अप्रैल में बंद हो गया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने हो गए स्कूल बंद हुए, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है अब, इसलिए मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को ये मन बना लेना चाहिए कि अब स्कूल आना है, ओके, ठीक है। टाइम टेबल वही रहेगा कि चेंज होगा? क्या कह रहे बेटा? 150 आउट है। क्या कह रहे हैं टाइम टेबल वही रहेगा? टाइम बेटा? टेबल वही रहेगा वो कि तो अभी चेंज वो होगा? तो बात की बात है, डिसाइड होगा। पर बात ये है कि अभी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आप लोगों को स्कूल आना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, ठीक है। सैनिटाइजर लगा के चलिए, मास्क लगा के चलिए। हमारे स्कूल में सारी सुविधाएं हैं। वी प्रोवाइड यू ऑल द फैसिलिटीज सो दैट यू विल बी कोविड फ्री, ओके। हम लोग सारे एसओपी स्कूल में फॉलो करते हैं ताकि अच्छी से अच्छी तरीके से सब लोग रह सकें, ठीक। चलिए, पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
चौथा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, इसको सबसे पहले विंडोज ने बनाया था, जो MS DOS है। दिस इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। मेन एम क्या होता है इसका एम ये होता है पर्सनल, यानी कोई एक यूजर अपने काम को इजीली कर सके, इसके लिए बनाया गया है। दिस इज कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। वी कैन कॉल इट पीसी, ओके। दिस ओके, इट इज वी कैन कॉल इट पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले बनाया था, इट वॉज फर्स्ट डिजाइंड बाय इसको सबसे पहले किसने बनाया था? बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने। सबसे पहले बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है, फॉर IBM। एक कंपनी IBM का नाम मैंने कई बार बताया है। IBM को फुल फॉर्म किसी को पता है? क्यों? IBM को फुल फॉर्म याद है आप लोगों को? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल, इस कंपनी के लिए बनाया गया था। एंड द नेम ऑफ OS का नाम क्या था? MS DOS। क्या नाम था? MS DOS। MS का मतलब होता माइक्रोसॉफ्ट, MS का फुल फॉर्म होता माइक्रोसॉफ्ट, और DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया था, पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर के। ये कंपनी थी IBM, इसके लिए बनाया था पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। उसका नाम था MS DOS, ठीक है। और इसके बहुत सारे ये जो होता है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इट इज डायरेक्टली लोडेड। द मेन एडवांटेज of this OS is it is loaded loaded in BIOS। BIOS का नाम सुना आप लोगों ने? BIOS का नाम सुना? BIOS का बोलूँ मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ये BIOS के साथ लोड हो जाता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं। तो बच्चों आप लोग जब देखते हो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं, तो जब बूट हो रहा होता है, यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो एक्चुअली एक हमारे अंदर मैंने आपको बताया रोम जो होती है, रोम जो बेसिक इनपुट आउटपुट कमांड जो एग्जीक्यूट कराती है, इसको BIOS बोलते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो एग्जीक्यूट कराती है, इसी के साथ ये DOS लोड हो जाता है, ठीक है। और सिंगल यूजर इसको आराम से यूज कर सकता है, ठीक है। बाद में ये जो MS DOS जो एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है MS DOS? DOS is a command line interface, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस है। क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस है।
एक कमांड लाइन इंटरफेस है, मतलब इसमें CLI यानी एक कमांड बेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कमांड बाय कमांड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है इस कंपनी ने बहुत सारे GUI बेस्ड आफ्टर few years company introduced GUI का मतलब बोलो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI का बोलोगे ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड OS। इसके बाद कंपनी ने GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना दी जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होते हैं। जैसे GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, MS विंडोज, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं। जैसे आपके स्कूल लैब में जो लगे हुए हैं वो सारे क्या है, यूजर फ्रेंडली है, वो सारे क्या है, यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे हो गए पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इतना बेटा आज तक के लिए रखते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके नोट भी आपको मिल जाएंगे। कल ये चैप्टर मैं वाइंड अप कर दूंगा, टुमारो आई विल वाइंड अप दिस चैप्टर एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 7। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग हो सकता लग रहा हो आप लोगों को, बट पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू शुड कम टू मी एंड यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू क्लास।